Welcome back, and we are discussing Jazz by Toni Morrison. So this is modern American novel by Toni Morrison, the writer. So Jazz is not only the name of the novel, but also it corresponds to the music of the age. So the age of Harlem Renaissance that we are discussing in this novel, that will be thoroughly discussed with you. This is a novel of stream of consciousness in which events are not in chronological order. So we already know what stream of consciousness is. Morrison was born in 1931 during the time of Great Depression, in which America was suffering from so many economical crises. Anthony was the name given to her at her baptism, and afterwards Toni was the nickname. Morrison was her father. So he moved to Georgia, to north from Georgia, after the Great Migration. So this was a great migration in America when many people who were African Americans, they moved from south to north in the 20th century. So basically it was a migration based on certain causes. So baptism is basically like a custom in Christianity in which they sprinkle holy water on a baby and give a name to it, to the baby, whatever the name. So all the Christians, even in Pakistan, they have their Christian name, which is different, and their popular name, which is different, which is there in front of us. So Morrison was 2 years old when they were forcibly evicted because they could not pay the rent, and then they were refused to leave. And then there were certain stories that she heard from her childhood and what happened around in that great migration period. She was very good in schools, and she read so many novels. She graduated from Howard University in 1953 in English literature. And then he went to University of Texas, which was Southern University. She went to publishing field, but as an editor. So she worked with other people like Gail Jones. She published her first novel, The Bluest Eye, in 1970, and she got promising reviews from the people. She got so many awards, and Nobel Prize in Literature in 1993 was one of them. And then she also got Presidential Medal of Freedom in 2012. Now, Jazz is written in 1992. So this is a historical novel, and the author is Nobel Prize winner, Pulitzer Prize winner, Toni Morrison. The major chunk of the novel is about the setting that is in Harlem in 1920s. So 1920 का टाइम है जो इसने इसमें दिखाया, वही टाइम जिसको हमने एक मतलब डिस्कस किया था इन हार्लेम रेनेसेंस टाइम. सो नॉवल जो है एक टोनी मॉरिसन की लाइक एक ट्रायोलॉजी के ऊपर बेस्ड करता है, जिसमें बिलव्ड और पैराडाइज ये भी इससे रिलेटेड नॉवल से 1987 और 1997 में लिखे थे इसने. इसका जो प्लॉट है, इसमें मॉरिसन अपने व्यूज बताती है पहले जैज के बारे में, फिर इवेंट्स 1850s के जो सिविल वॉर से पहले थे और इमेंसिपेशन जो हुई वर्जीनिया से लोगों की, फिर लाइक वेरा लुइस ग्रे एंड हेनरी लेस्ट्रॉय ये कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में वो डिस्कस करेगी. फिर वेरास फादर के बारे में वो डिस्कस करती है. तो बेसिकली होता क्या कि जो वेरा लुइस ग्रे और हेनरी लेस्ट्रॉय ये दो कैरेक्टर्स हमें दिखाए जाते हैं. तो वेरा लुइस जो है वो बेसिकली कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे की बेटी है, जिसको हेनरी लेस्ट्रॉय से प्यार हो जाता है, जो कि एक ब्लैक है और उनके पास काम करता है. तो वेरा लेस्ट्रॉय जो उसका फादर कर्नल वर्ड्सवर्थ, उसे बड़ा गुस्सा आता है. वेरा इज बेसिकली नाउ इन सो मच ऑफ द रिलेशन विद हेनरी लेस्ट्रॉय कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है. तो इज्जत के हवाले से, उस गुस्से के हवाले से वेरा
लेस्ट्रॉय हेनरी को तो निकाल दिया जाता है, वेरा को भी एक्सपेल कर दिया जाता है। सो वेरा को जब एक्सपेल किया जाता है तो उसके साथ ट्रू बेले होती है, हु इज हर मेड सर्वेंट, उसको भी उसके साथ भेज दिया जाता है कि इसका ख्याल रखेगी। सो वेरा लुइस की जो बेटा होता है पैदा, वो गोल्डन ग्रे है। उसका नाम गोल्डन ग्रे इसलिए होता है क्योंकि हेनरी की वजह से ही इज ऑफ ग्रेश कलर एंड गोल्डन हेयर उससे अपनी माँ से मिलते हैं। ट्रू बेले आफ्टरवर्ड्स टेल्स गोल्डन ग्रे द रियलिटी, कि तुम कौन थे, तुम्हारा बाप कौन था, कैसे निकाला गया। सो गोल्डन ग्रे देन गोज टू मीट हिज फादर, बट बिफोर दैट ही रीचेस हिज फादर, उससे एक प्रेग्नेंट वुमन मिलती है और वो उसे शेल्टर की तरफ ले जाता है। सो शी इज सो पैरानॉइड, डरी होती है, तो वो उसको खैर बेहोश होती है जब वो गिरती है इससे भागते हुए, पत्थर लगता है तो वो सब अनकॉन्शियस हो जाती है। सो ही टेक्स हर टू अ शेल्टर नियर बाय। तो वो शेल्टर जो होता है वो हेनरी लेस्ट्रॉय का शेल्टर होता है, यानी उसके बाप का, गोल्डन ग्रे के बाप का। तो वहां पे बाप बेटा आपस में मिलते हैं। तो उनका जो मिलना है बेसिकली दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सो लाइक सेंटिमेंटल, लेकिन होता क्या है, वो जो विमेन जो कि लेबर पेन में होती है, वो उस मीनवाइल हेनरी को काटती है उसके हाथ पे, और हेनरी उसे वाइल्ड का नाम देता है कि उसके वाइल्ड बिहेवियर की वजह से। सो मीनवाइल जो अफ्रीकन, और बिलीव किया जाता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट जो ट्रेस इस वाइल्ड का बेटा है, इसी खातून का। सो जो ट्रेस कौन है वो आगे हमें पता चलेगा। मीनवाइल अफ्रीकन अमेरिकन रॉयट्स दिखाए गए जो कि नस्ली तजादात थे, लड़ाइयां हुई इनकी आपस में। वॉयलेट जो थी, शी वॉज डॉटर ऑफ ट्रू बेलेस डॉटर रोज डियर। तो हमारे पास अब दो मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल में, एक जो ट्रेस, सेकेंडली वॉयलेट। सो जो ट्रेस कौन है, वो उस प्रेग्नेंट वुमन का बेटा है जो कि अनकॉन्शियस हो गई थी। और वॉयलेट कौन है, ट्रू बेले जो कि वेरा के साथ निकाल दिया गया जिसको, उसकी बेटी की बेटी, यानी उसकी नवासी थी, रोज डियर की बेटी थी। अब रोज डियर जो थी उसकी मां यानी वॉयलेट की मदर, उसने सारी उम्र मिजरीज में गुजारी, क्योंकि वॉयलेट का जो फादर था वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के टाइम पे भाग जाता था, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी किस्म की ओवर होती थी तो वो वापस आता। तो मीनवाइल रोज डियर जो है वो अपनी एंड तक खराबियों में रही, परेशानियों में रही। जब ट्रू बेले की जॉब खत्म हुई वहां से, तो वो वापस आई और अपनी बेटी के साथ और बाकी लोगों के साथ सेटल हुई। तो उस वक्त रोज डियर को लगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ आ चुकी है। सो शी जंप्ड इनटू द वेल एंड कमिटेड सुसाइड, मर गई वो। वॉयलेट बाय द टाइम वाज 18 और वो कॉटन हार्वेस्ट के लिए जाती थी। ये सारे लोग, सारे बच्चे ये कॉटन हार्वेस्ट पे जाते थे ताकि इन्हें कुछ पैसा मिल जाए। वहां पे शी मीट्स जो ट्रेस। सो जो ट्रेस जो ये थक के बैठती है एक दरख्त के नीचे, तो जो ट्रेस जो ऊपर कहीं दरख्त पे चढ़ा होता है, वो दरख्त का ट्रंक टूटता है और वो नीचे गिरता है, तो वहां पे इनकी पहली मुलाकात होती है। सो दे आर इन लव विद ईच अदर, और ये दोनों का एक तरह से फर्स्ट इंटरेक्शन होता है ऑपोजिट जेंडर के साथ। सो दिस वेरी इंटरेक्शन इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लव रिलेशन, और ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। And then with that great migration, they also migrate and come to New York, main city. अब न्यू सिटी में आके जो है इस, अब ये इनका बड़ा वो हनीमून पीरियड जा रहा है, जो कि हर एक लव रिलेशन का होता है कि नई नई शादी हुई और इलाका चेंज कर लिया, नई जगह पे आ गए, एक बड़े शहर की अपनी एक्साइटमेंट है, गांव से निकल आए और अब वहां पे मिलके रह रहे हैं, एक फ्लैट भी ले लिया इन्होंने। सो जो है वो कॉस्मेटिक सेल्समैन बन जाता है। ये हमने याद रखने के, सिंस दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक कम्युनिटी, तो इन लोगों को तब वो वाले इख्तियारात और वो सारी प्रिविलेजेस और जो प्रीरोगेटिव्स हैं वो सारे इनके पास नहीं थे, वो फ्रेंच बेनिफिट्स इनके पास नहीं थे, तो इनको बड़ा ऑड जॉब्स करनी पड़ती थी। सो जो है वो कॉस्मेटिक सेल्समैन बन गया, जिसकी एक नॉर्मल सी तनख्वाह थी। वॉयलेट ने लोगों के बाल काटने शुरू कर दिए,
whereas she was an unlicensed hairdresser. यानी ये वो licensed hairdresser नहीं थी, तो since she was unlicensed hairdresser, तो इसको कोई खास अमाउंट नहीं मिलती थी, कोई खास पैसे नहीं मिलते थे। इब्तिदा में इन लोगों ने they went for family planning, excitement में, and then Violet had certain miscarriages. अब वो इस पूरे टाइम के दौरान आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों के दरमियान दूरी शुरू हो गई, क्योंकि द बॉन्डिंग और द बाइंडिंग फोर्स यानी बेबी वो इनके दरमियान नहीं आया, जिसकी वजह से ये हस्बैंड वाइफ वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रहे और आहिस्ता आहिस्ता ये एक दूसरे की तरफ इनकी वो जो अफेक्शंस थी कम होती रही, कोल्ड एटीट्यूड होता रहा। एलिस मैनफ्रेड, ये एलिस मैनफ्रेड एक और करेक्टर है जो कि हार्लेम में सेटल हो चुकी थी। उसकी बेटी डॉर्कस आती है हार्लेम उसके पास रहने, ये भी उस ग्रेट माइग्रेशन में आई थी। तो डॉर्कस जो थी वो इसकी फैमिली को वहाँ पे जिस एरिया से ये आई वहाँ पे उसको जला दिया गया था, उसके घर को, जिसमें इसकी फैमिली भी जल गई, इसकी फेवरेट डॉल्स भी जल गई। तब से ये न्यूयॉर्क अपनी ऑन्ट एलिस मैनफ्रेड के घर पे रह रही थी। सो एलिस जो थी वो नहीं चाहती थी कि डॉर्कस कोई इस सोसाइटी का हिस्सा बने, क्योंकि पहले ही इसकी फैमिली को खोया जा चुका है, ये भी हाथ से ना निकल जाए। तो वो इसको बड़े अजीबो गरीब ड्रेसिंग कराती थि, जिससे ये बड़ी लाइक अनइम्प्रेसिव लुक दे और लोग इसको ना देखें। खैर जो कि एक हाउस टू हाउस गोइंग सेल्समैन था, सो वंस ही गोज टू एलिस हाउस, जहां पे उसकी मुलाकात डोरकास से होती है। सो अब दोनों की सिचुएशन ये थी कि डोरकास इससे पहले उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था या कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, और जो अपनी उस मैट्रिमोनियल लाइफ से थक चुका था। सो दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर एंड दे वर इन लव। और उसके बाद फिर डोरकास के अंदर इमोशनल चेंज आती है आहिस्ता आहिस्ता। मीनवाइल ये लोग आपस में मिलते भी हैं, एक रूम भी रेंट पे लेते हैं जहाँ पे ये एवरी थर्सडे इनकी मुलाकात होती है। आहिस्ता आहिस्ता डोरकास को लगता है कि जो उससे एज में बहुत बड़ा है उसकी और इसकी आदतें नहीं मिलती, हैबिट्स का डिफरेंस है। तो जो के इमोशंस चेंज होते हैं और एक क्लब में जो उसको डोरकास के इमोशन चेंज होते हैं, तो जो उसे शूट कर देता है, मार देता है उसे। डोरकास मर जाती है उस क्लब में। वॉयलेट को जब ये इंसिडेंट पता लगता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है इस चीज का, और वो इस चीज में यानी जो तो गिल्टी फील कर रहा होता है। वॉयलेट के अंदर ये गिल्ट होता है बेसिकली कि वॉयलेट आके जो डोरकास की डेड बॉडी है उसे स्लैश करने की कोशिश करती है, उसे चाकू से खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग इसे भगा देते हैं, निकाल देते हैं। सो बेसिकली ये हार्लेम रेनेसेंस ये क्या था? ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी उस टाइम में, जिसको हम इसमें देख रहे हैं। ये अभी हमने क्रोनोलॉजिकल प्लॉट डिस्कस किया, अभी हम मेन स्ट्रीम की तरफ आते हैं। तो बेसिकली इसमें न्यू नीग्रो मूवमेंट भी कहा जाता है इसको, 1920s में लिखी गई, और इसमें एक एंथोलॉजी एडिटेड बाय एलन लॉक जिसमें इसको न्यू नीग्रो मूवमेंट कहा गया। इसमें अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल एक्सप्रेशन और उसमें उस ग्रेट माइग्रेशन को बड़ा रोल मिला। ग्रेट माइग्रेशन बेसिकली एक ग्रेट नॉर्थवर्ड माइग्रेशन थी, जिसमें साउथ ऑफ अमेरिका से लोगों ने नॉर्थ ऑफ अमेरिका की तरफ माइग्रेट किया। 6 मिलियन अफ्रीकन अमेरिकन जो थे वो सदर्न एरियाज को छोड़ के नॉर्दर्न एरियाज में आए, जस्ट बिकॉज ऑफ दोज रायट्स जो कि वहां पे नस्ल और रंग के ऊपर हो रहे थे। इसकी जो थीम है बेसिकली उसमें मदरहुड है, वायलेंस है। मदरहुड जो हम देखते हैं रोज टियर के हवाले से, वायलेंस हम देखते हैं वॉयलेट के हवाले से, रेस जो कि जिसकी वजह से इन लोगों को सफर करना पड़ा, माइग्रेशन जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे आए, ऑर्फन्स जो भी एक ऑर्फन था, वॉयलेट भी एक ऑर्फन थी, डॉर्कस भी ऑर्फन थी। म्यूजिक, जैज म्यूजिक बेसिकली इस नॉवल का नरेटर भी है, इस नॉवल का एक एक्टर भी है, करेक्टर भी है, एक प्रेवलेंट फोर्स भी है। तो जो म्यूजिक है बेसिकली वो उसके अंदर थोड़ी सी हलचल है जो कि एलिस नहीं चाहती कि उसकी भांजी के अंदर आए, और ये वो हलचल है जो कि
जो चाहता है कि उसके अंदर आए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उस चीज से पक चुका था अपनी लाइफ से। बर्ड्स हैं जो कि इसने पाले वॉयलेट ने न्यूयॉर्क में आने के बाद। उसमें से एक बर्ड के साथ वो बहुत प्यार करती थी, वो बोलता भी था, और ये अपने बर्ड्स को आज़ाद कर देती है। सो बर्ड्स उस लाइफ को रिफर करते हैं जो उनकी पुरानी लाइफ थी गांव में, जो कि बड़ी आज़ाद थी, और अब केज इनके न्यूयॉर्क की लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। मेमोरी इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे इंसिडेंट्स दे आर बेस्ड ऑन मेमोरी, हर करेक्टर कुछ ना कुछ सोचता है। यूथ एंड एज, जो ट्रेस की जो एज थी ज्यादा थी और डोरकास की एज कम थी। तो अब ये बेसिकली जो है ये नॉवल, अब वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थी समरी, अब ये जिसका समरी बेसिकली बयान की गई। तो इट इज 1926 और ये बड़ी कोल्ड विंटर मॉर्निंग होती है, और एक वुमेन नेम्ड वॉयलेट ट्रेस, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, उस यानी नॉवल यहां से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल है, मॉडर्न टेक्निक्स पे बेस्ड। वो अपने सारे बर्ड केजेस को खोल के उन्हें उड़ा देती है, और उसका फेवरेट बर्ड भी जो कि आई लव यू कहता है उसके जवाब में। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शी वॉज इन लव विद जो ट्रेस। जब जो ट्रेस ने उससे इमोशनल रिलेशन खत्म कर दिया हस्बैंड ने, तो ये फिर उस परिंदे को आई लव यू कहती थी, और इतना ज्यादा कहा कि वो परिंदा भी सीख गया। इन द एंड जब उसे पता लगा कि इन परिंदों से मेरी लॉनलीनेस दूर नहीं हो रही, तो इन द एंड उन परिंदों को भी उड़ा देती है। सो वॉयलेट 50 ईयर की ओल्ड ब्लैक वुमन है, स्किनी है, इमोशनली अनस्टेबल है। हमें पता लगता है कि हार्लेम में रहने के बाद, इस जगह पे आने के बाद, उसने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, और ये स्ट्रेस वॉयलेट को दुबाता जा रहा था, उसको खत्म कर रहा था। एक दिन आफ्टरनून में वॉयलेट जो है वो ऐसे ही सड़क पे घूम रही होती है, तो और वो बिल्कुल मिडिल ऑफ द स्ट्रीट बैठ जाती है। ये इश्यूज तब हुए जब डोरकास मर चुकी थी। क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, इसलिए आप इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी। तो वॉयलेट जो है इतनी एब्सेंट माइंडेड हो जाती है कि वो चलते हुए मेन सड़क के दरमियान बैठ जाती है। तो लोग बड़े इसको देख के यानी परेशान होते हैं कि इसके एटीट्यूड को क्या हो गया। वॉयलेट अपने हस्बैंड जो ट्रेस के साथ रहती है, वेल्दी नहीं है, छोटी सी इसकी तनख्वाह है, जो कि एक अनलाइसेंस्ड हेयर ड्रेसर के तौर पे लोगों के घरों में जाके उनके ब्यूटिशियन के तौर पे काम करती है। वॉयलेट लोनली है, और वो उसके पास बड़ी फैमिली भी नहीं है, और अब वो बिल्कुल अकेली हो गई है। अपने परिंदों को भी उड़ाने के बाद बिल्कुल खामोशी है उसके फ्लैट में। और वॉयलेट को लगता है कि उसकी जो लोनलीनेस है, और उसकी जो उसकी ग्रैंड मदर, जो उसने उसको देखा, तो उसको लगा कि जैसे ग्रैंड मदर के बहुत सारे बच्चे थे, मेरी भी बहुत औलाद होनी चाहिए। और उसे लगता है कि शायद ये चीज इनके दरमियान के रिलेशन को इम्प्रूव कर पाए, जो और वॉयलेट को। अब इसमें जो सिटी है वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। सिटी एक ग्लैमरस फोर्स है जो कि ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल कर रहा है। जैज म्यूजिक भी इसके साथ एक फोर्स है जो कि लोगों के इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इन स्काई स्क्रैपर्स में अब क्या है, फिलहाल डॉर्कस का जो भूत है, यानी उसकी जो रूह है, वो इन दोनों को हॉन्ट करती है, वॉयलेट को भी और उसके हस्बैंड को भी। क्योंकि वॉयलेट को इसलिए कि वॉयलेट ने उसके फ्यूनरल पे इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया, जो को इसलिए कि उसने उसको कत्ल किया। अब इसमें बेसिकली जब डॉर्कस की डेथ के बाद वो मेलविनी के पास जाती है। सो मेलविनी वो खातून है जिसका रूम एज अ लव नेस्ट यूज किया जाता था ट्रेस और डॉर्कस से, जिसको पहले उसने रूम नहीं दिया क्योंकि वो वॉयलेट को जानती थी, बट आफ्टरवर्ड्स उसने उसको वंस अ वीक पे वो रूम दे दिया। किराया पूरा देते थे, लेकिन रूम वाज यूज्ड वंस अ मंथ। फिर शी गेट्स अ फोटो ऑफ वॉयलेट ऑफ डॉर्कस, जो कि एलिस मैनफ्रेड से उससे मिलती है। सो एलिस मैनफ्रेड को भी विजिट करके डॉर्कस उसकी एक तस्वीर अपने घर पे ले आती है और मेंटल पीस पे रख देती है, जहां पे वो तस्वीर
इन दोनों को हॉन्ट करती रहती है और गिल्ट और उसके साथ साथ यानी स्लीपलेसनेस यानी इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। इवन दो ही हैज शॉट डॉर्कस, जो इज स्टिल अ वेल मैनर्ड ओल्डर मैन जिसमें कोई अपने एक्शंस का कोई खास गिल्ट नहीं था। और उसमें बेसिकली ज्यादा वजह ये थी जो वो रात को उठता था कि उसका एक एक्साइटमेंट खत्म होगी लाइफ से, एक रिलेशन एंड हो गया। और वॉयलेट इसलिए नहीं सो पाती क्योंकि उसे फील होता है कि उसने उसके जनाजे पे क्या किया या उस खातून में ऐसा क्या था जिस वजह से जो उससे उसकी तरफ इंस्पायर हुआ। अब फर्दरमोर नॉवल में क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस पीछे जाता है। ट्रेसिस के बारे में उनकी जो हमने क्रोनोलॉजिकल प्लॉट में देखा कि वो फील्ड वर्कर्स से वेस्पर कंट्री में, और वहां पे वॉलनट ट्री के नीचे उसने उसे प्रपोज किया, उनकी शादी हुई और उसके बाद फिर वो आगे अपने इस जगह पे सेटल हुए। फिर वहां पे एक एनकाउंटर होता है जो ट्रेस का, जो कि वो एक खातून को देखता है जो कि बड़ी वाइल्ड सी नेचर की होती है और उसको लगता है कि शायद ये मेरी माँ हो। तो ये वही खातून थी जो जिसको हमने शुरू में देखा कि वो एक जगह पे बेहोश हो गई थी, जिसका नाम वाइल्ड रखा गया। जो को एक फीलिंग आती है डॉर्कस में कि डॉर्कस भी मदरलेस है और डॉर्कस की जो हिस्ट्री है वो उससे अपनी हिस्ट्री से मिलती जुलती नजर आती है, थोड़ी सी मिस्टीरियस है। उसके भी पेरेंट्स नहीं है, इसके भी पेरेंट्स नहीं है। तो ये एक बॉन्ड है जो इन दोनों को एक दूसरे के करीब लाता है। फिर शी रिमेंबर्स विजिटिंग अ फ्रेंड एंड बीइंग स्टार्टर्ड बाय स्क्रीम्स कमिंग फ्रॉम हर स्ट्रीट। तो डॉर्कस अपनी सहेली के पास जाती है जिसमें उसे अपने घर से चीखों की आवाज आती है, जहां पे उसके घर को जानबूझ के आग लगा दी गई और उसकी माँ और उसकी टॉयज वहां पे जल गए। एलिस जो है वो काफी अरसे से हार्लेम में रह रही थी, जिसके पास डॉर्कस आती है उसके पास रहने के लिए, और उस सादम के दौरान वो उसको पालती है और वो उसके साथ रहती है। और डॉर्कस को वो अलाउ नहीं करती इस सिटी का हिस्सा बनने के लिए। तो डॉर्कस के लिए वो अपार्टमेंट ऑपरेशन की अलामत है। उसके कपड़े बड़े अनफ्लैटरिंग किस्म के हैं, बड़े फजूल किस्म के हैं। एलिस उससे कहती है कि तुम डेफ एंड ब्लाइंड हो जाओ न्यूयॉर्क से, इसकी रंगीनियों से, और उसे कहती है बिल्कुल गुमनाम होकर अपनी लाइफ गुजारो। तो इस चीज के अंदर इतने प्रेशराइज होने के बाद जब जो मिलता है तो शी स्प्रिंग्स अप और उसके साथ हो जाती है। एलिस जो है उसको एक दिन जाना पड़ता है स्प्रिंगफील्ड एक रात के लिए। तो डॉर्कस को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी सहेली फेलिस के साथ एक डांस पार्टी अटेंड करने जाती है। तो यहाँ पे उसके उन्हीं कपड़ों की वजह से, उन्हीं अनअट्रैक्टेड लिबास की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो के लाइफ में आने से पहले तक वो इस इंफीरियरिटी में रहती है। फिर जो स्टोरी है सेकंड पर्सन नरेटर में जाती है कि एक दिन वॉयलेट के चाइल्डहुड में कि उसके फादर ने फैमिली को डिजर्ट कर दिया। डेट कलेक्टर्स आए, उन्होंने पैसे मांगे। वॉयलेट की जो मदर थी रोज डियर, वो एक पीस ऑफ पेपर उसे दिया गया कि उसका जो उसके हस्बैंड ने ये साइन कर दिया है, सारा घर वगैरह बेच दिया है। रोज डियर ने इस चीज को बड़ा दिल पे लिया और इसके बाद यानी उससे सब कुछ छीन लिया गया। उसकी माँ जब वापस आई तो उसने कुएं में छलांग मार दी और मर गई। फिर उसके बाद वर्जीनिया में ये बच्चियां जाती हैं जहाँ पे उसकी मुलाकात जो ट्रेस से होती है। सो जो ट्रेस से मिलने के बाद ये लोग न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूयॉर्क की लाइफ उन्हें पहले तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो केओटिक लाइफ सामने आना शुरू हो जाती है। फिर उसमें जो है वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है। इसका नाम ट्रेस इसीलिए है कि ही इज ऑल द टाइम ट्रेसिंग हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को ट्रेस कर रहा है, स्पेशली मदर को, कि उसके पेरेंट्स कौन थे। देन द नरेटर टेल्स अबाउट ट्रू बेली स्टेट ऑफ माइंड कि जब वो बाल्टीमोर से वेस्पर कंट्री में आई तो उसकी जो बेटी थी वो किस हालत में रह रही थी, उसकी क्या सिचुएशन थी। फिर ट्रू बेली के रिमोट पास्ट के बारे में बताया गया कि ट्रू बेली वाज अ स्लेव जो कि वेस्पर कंट्री में थी,
और वो वेरा लुइस ग्रे के साथ उसे निकाल दिया गया, जिसका हेनरी लेस्ट्रॉय के साथ अफेयर था, और प्रेग्नेंट हो गई, और उन तीनों को उसकी बेस पे निकाल दिया गया। उसका बेटा हुआ गोल्डन ग्रे, जिसके रंगत बाप पे थी ग्रे कलर की और बाल माँ पे थे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वेरा का जो अफेयर था वो उसके बाप को, वेरा के लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन शी वाज डिसआउंड आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद गोल्डन ग्रे कैरेज पे जाता है, उसे वो वुमेन मिलती है, वो वुमेन को वो लेके एक साइड बाय साइड एक जगह पे जाता है। वो जगह उसके बाप की होती है, जहाँ पे वो उसको, यानी इट इज टाइम फॉर हर टू डिलीवर अ चाइल्ड। लेकिन यहाँ पे वो जो यंग बॉय है वो एक आके बताता है कि गोल्डन ये लेस्ट्रॉय की प्लेस है, जो कि 2-3 नामों से जाना जाता है। लेस्ट्रॉय को हंटर भी कहा जाता है, मिस्टर हेनरी भी कहा जाता है। तो वो अपने यानी बाप बेटे एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वाइल्ड की स्क्रीम्स की वजह से वो उसकी तरफ दोबारा अटेंटिव होते हैं, तो वो एक सेंटिमेंटल मुलाकात नहीं हो पाती। तो उसमें उसका जो उसको नाम दिया जाता है वाइल्ड का, बिकॉज शी बाइट्स हेनरी ऑन हिज हैंड। फिर नरेटर दोबारा जो के एक्सोडस पे बात करता है कि जो जब वहां से निकला और वहां से उसके बाद उसने रुख किया मेन स्ट्रीम का, सिटी लाइफ का। तो उसमें बेसिकली इस सिचुएशन में जब ये सारा अफेयर एंड हो गया, बाय द एंड ऑफ द प्ले हम देखते हैं कि फेलिस शी डिसाइड्स टू विजिट द ट्रेसेस। सो फेलिस जो सहेली होती है डॉर्कस की, बेस्ट फ्रेंड, वो जाती है ट्रेसेस के पास, और उसे पता कि अब जो ट्रेस, वॉयलेट ट्रेस, ये इमोशनली अब नॉर्मल हो चुके हैं, इन्हें थोड़ा सा बकअप करना पड़ेगा, चीयर अप करना पड़ेगा। तो उसे वो उनके पास फिर अक्सर आती है, मिलती है उनसे, वो कुछ बातें करते हैं और उनके साथ वो थोड़ा सा यानी डांस वगैरह करते हैं। सो वॉयलेट जो है वो मीनवाइल वहां पे थोड़ा सा एक अप स्टार्ट होती है, आहिस्ता आहिस्ता इनकी आपस में केमिस्ट्री डेवलप होती है। तो ये बेसिकली है कि इन दोनों को एक बंदा मिल जाता है मजीद, जिससे वो बात करते हैं, और वो फेलिस की मौजूदगी बेसिकली इन दोनों हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के करीब लेके आती है। और उसमें फिर एक और चीज जो फेलिस एक्सेप्ट करती है वो ये होती है कि जो को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि उसने कत्ल किया, क्योंकि जब उसे मारा गया या जब उसे गोली लगी, तो गोली बेसिकली उसको फेलिस के शोल्डर्स पे लगी, तो वो बच सकती थी, लेकिन उसने पर्पसली एम्बुलेंस को नहीं बुलवाने दिया, और इस वजह से वो मर गई, क्योंकि शी वॉज नॉट विलिंग टू लिव, वो जिंदा रहना चाह ही नहीं रही थी। तो यहाँ से जो का थोड़ा सा एक अपने एक इम्प्रेशन खत्म होता है उस गिल्ट का। वॉयलेट को भी थोड़ा सा सुकून आ जाता है कि चलो अब जो हो गया हो गया। सब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बाय द एंड ऑफ द प्ले एक जैज म्यूजिक पे डांस करते हैं, और दिस इज शोन कि अब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और एक दूसरे के करीब आ गए। सो मेन कैरेक्टर्स में हमारे पास डॉर्कस है, जिसको हमने डिस्कस किया। शुरू में अनअट्रैक्टिव थी, फिर उससे शादी हो गई, उससे प्यार मोहब्बत हो गया। उसके बाद उसने जानबूझ के अपने आप को किसी और अफेयर में इन्वॉल्व किया। शी वॉज शॉट डेड, लेकिन उसने जिंदा रहने की कोशिश नहीं की। फेलिस बेस्ट फ्रेंड है, जो आके उनको बताती है कि ये सारा मामला कैसे हुआ, और वो बेसिकली एक मेडिएटर का रोल प्ले करती है। गोल्डन ग्रे उस वाइल्ड वुमेन का बेटा था, जो वेरा लुइस का बेटा था, और हेनरी लेस्ट्रॉय का, जो कि आफ्टरवर्ड्स जाके अपने बाप से मिल लेता है। वेरा लुइस कर्नल वर्ड्सवर्थ की बेटी थी, जिसने डिसोन कर दिया उसके इम्प्रेग्नेंट होने के बाद। कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे, उसके पास एक यानी ही इज अ वेल टू डू पर्सन, अ बिजनेसमैन, लेकिन वो अपनी बेटी की इस डिसऑनर को बर्दाश्त नहीं कर पाया। हेनरी लेस्ट्रॉय वो मुलाजिम था, जिससे हेनरी हंटर 2-3 नामों से जाना जाता है। सो ये पहले उसका सर्वेंट था, बाद में अलग हो गया, और इसने फिर अपना एक रहने का अलग ठिकाना बनाया। ऑनर जो था ये यंग बॉय था, जो कि गोल्डन ग्रे को मिलता है उसके घर पे, अपने बाप के घर पे। मेलविनी वो खातून है जिसके फ्लैट को यूज किया जाता है। एलिस मैनफ्रेड
वो खातून है जिसकी भांजी थी और जिसकी बहन और उसकी फैमिली को जला दिया गया। रोज डियर वॉयलेट की मदर थी, जिसने सारी इलेक्शन ऑपरेशन और मिजरीज में गुजारी। इन द एंड उसने को ढूंढ रहा था और इसने क्रैच से काम स्टार्ट किया क्योंकि ब्लैक्स को इतनी परमिशन नहीं थी। और डोरकस के साथ इसके इमोशंस ऐसा खत्म हो गए और बाद में वो डोरकस को छोड़ के किसी और के अंदर इसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया और बाद में इसने उसे कत्ल कर दिया। वॉलेट ट्रेस, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये अपने हस्बैंड के एटीट्यूड के साथ एब्सेंट माइंडेड हो गया और एब्सेंट माइंडेड होने के बाद इसने एब्सेंट माइंडेड हो गई और इसने डोरकस की बॉडी को भी खराब करने की कोशिश की। ये सड़क के दरमियान भी बैठ जाती थी। एक मरतबा इसने किसी बिल्डिंग में से एक बच्चे को उठा लिया और यानी शी डिडंट नो व्हाट टू डू ऑफ द चाइल्ड और व्हाई शी इज पिकिंग इट अप, लेकिन इसने उठा लिया और लोगों ने इसकी सर्विसेज लेना छोड़ दी। ट्रू बिली वॉयलेट की नानी थी जो कि बाल्टीमोर में थी और वेरा लुइस ग्रे की सर्वेंट थी और उससे नौकरी खत्म होने के बाद वापस आ गई जब उसकी बेटी ने सुसाइड की। वाइल्ड वाज द लेडी जो कि गोल्डन ग्रे को मिलती है और जो को यानी मिलती है, शी इज अनस्टेबल रहती है। So this was all about jazz, which was by settings of America and especially about Harlem Renaissance.